गाहे नबूवत उठाई, देखा मेरा एक बेटा हसन इस्लाम के लिए अपना इक्तदार कुर्बान करेगा और मेरा दूसरा बेटा हुसैन इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करेगा। ऐ ज़र्फ़े नजर देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। ये इस्लाम है और इसी ने बंदे को इज्जत दी है। हजरत के बरादर मोहतरम फरमाते हैं, जब वक्त अजल हो, सर तेरी चौखट पे दरा हो, जितनी भी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और मट्टी ना हो बर्बाद बसे मर गई इलाही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की आवाज़। आका की मोहब्बत और सच्ची हो, और जब सच्ची मोहब्बत होती है तो बंदा पहचाना जाता है। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्फी अल्लाह दी बंदगी करो नबी पाक ते पढ़ो दरूद रल मिल, चारे यार रसूल दे सच मनो, मौला पाक थी लो मकसूद रल मिल। ते गौस पाक दे बनो मुरीद पाके, दर रब दे रो मौजूद रल मिल। हैदर सट दे असद ते बुखल दिल थी, वंडो मूल न वैर खरूद रल मिल। पढ़ ला जिस दिन होया मैशर, आशिक नबी दे जश्न मनावसन गे, शाफी रोज मीजान दे आप ओसी, उसनो बख्श देसी जिसनो चावसन गे। बार बार कुरान विच हुक्म आया, जो जो चाहन वाले सोयो पावसन गे। सरवर शाह जो नबी दे हैं मुनकर, दसो केड़े दरवाजे ते जाव सनगे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरवर सल्लल्लाहु कलमा कल्बे अंदर है, हर कश्ती दा बंदर है। गो हैदर मस्त कलंदर है, गो हैदर मस्त कलंदर है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मोहम्मद सरवर सल्ले अला, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला। नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिल आख़िर, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत पाक में बावाज़ बुलंद दिए सलातो सलाम या रसूलल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंतहाई इज्जत के लायक हाज़रीन मोहतरम,
بالخصوص صاحبزادہ والا شان پیر سید فاروق حسین شاہ صاحب گیلانی، پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب گیلانی و دیگر جملہ صاحبزادگان ذی وقار، سادات کرام، حضرات علماء کرام، معزز قابل قدر شرکائے نماز جنازہ اور جملہ لواحقین حضرات، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ بھائی عبدالرزاق صاحب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور آنے والی ساری منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یقیناً نماز جنازہ ایک دعا ہے، اور جو بندے شامل ہوتے ہیں وہ اسی ارادے سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے جانے والے بھائی کے لیے دعا کریں اور اللہ ان کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ پتہ یہ چلا کہ دعا کا کوئی اثر ضرور ہوتا ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پاک ہے کہ جس نے صاحب ایمان حضور کے امتی کو بڑی شان عطا فرمائی۔ دنیا کا کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو یہ شان عطا نہیں کر سکا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق اسلام نے عطا کی۔ سبحان اللہ۔ لوگ بندہ فوت ہو جائے، کوئی آگ میں جلا دیتے ہیں، کوئی دریا میں بہا دیتے ہیں، کوئی ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، لیکن یہ اسلام ہے۔ فرمایا یہ آیا بھی عزت سے ہے اور اس کائنات سے جب جائے گا تب بھی پوری عزت اور احترام عطا کر۔ سبحان اللہ۔ بندہ امیر ہو یا غریب ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ ہو، فرمایا اس کے لیے نماز جنازہ ہے، اس کے لیے دعا ہے۔ جب سارے مسلمان مل کر اس کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار سارے کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی شان ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ جس نے اپنے بندے کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ کائنات میں آئے تب بھی عزت سے آئے اور جب جائے تب بھی عزت سے جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں سرکار دو عالم کا امتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح میرے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، اسی طرح یہ امت بھی آخری اس کائنات کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو مرتبہ اور مقام اللہ نے سرکار کو عطا کیا وہی حضور کی امت کو عطا کیا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے ہمیں اس کا امتی بنا دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ سارے رتبے اور مقام حضور کی شان رحمت سے اللہ نے عطا کیے ہیں، لیکن امتی کا حق کیا بنتا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی بسر کرے اور اللہ کے ذکر میں زندگی بسر کرے۔ دوستو پیر کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بندے کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ جو دنیا کی طرف لائے اسے پیر نہیں کہتے، جو اللہ کے ذکر کی طرف لائے اسے پیر کہتے ہیں۔ اللہ کی شان کی طرف توجہ کر دے، اور وہ مرید نہیں ہوتا کہ جو کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھی اس کے دل میں میں رہے، وہ مرید نہیں ہو سکتا
सामीन ज़ी वकार, आज जिस शख्सियत की हम नमाज जनाजा में हैं, इनके वालिद गिरामी भी बड़े अजीम इंसान, और अल्लाह ने इनको भी बड़ा अजीम इंसान बनाया है। पूरी संगत जानती है कि आप इज्जो इनकसारी के पैकर थे। अल्लाह ताला ने बेशुमार दुनिया की नेमतें भी अता फरमाई, औलाद भी अता फरमाई, बैरून मुल्क रहे, रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलता है, उसका जितना वक्त सर्फ होता है वो अल्लाह की इबादत में पेश किया जाता है और अल्लाह की इबादत में शामिल हो जाता है। इतने अजीम इंसान कि जिन्होंने शेख कामिल पीर तरीकत पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में हाथ दिया, फिर जिंदगी बदल गई और तकदीरें भी बदल गई। बंदा बैत भी हो जाए और उसी तरह का सरिया उसमें रहे, उसी तरह की आकड़ रहे, उसी तरह की दुनियादारी की हिर्स और लालच रहे, वो समझो बैत होकर भी नहीं बैत हुआ है। और जो पीरे कामिल के हाथ में हाथ दे और जिंदगी की काया पलट जाए, समझ लो कि वो अल्लाह का सच्चा बंदा है और आका अलैहिस्सलाम का सच्चा उम्मती है। अल्लाह ने इन्हें बड़ी अकीदत से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा। और सामीन ज़ी वकार अल्लाह ने बड़ी निस्बत से नवाजा। पीर खाने सारे अजीम हैं और हम सब की इज्जत करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने भाई रजा साहब को पीर खाना भी ऐसा अता फरमाया कि जो अल्लाह के वली भी हैं और आले नबी औलाद अली भी हैं। सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। जिनके लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब फरमा दीजिए अपनी उम्मत से, ला सअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सवाए इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। जब ये आया करीमा नाजिल हुई, उन्होंने अर्ज किया, हजूर ये जिनकी मवद्दत और मोहब्बत हम पर अल्लाह ने वाजिब कर दी है, ये आपके कराबतदार कौन है? तो कमली वाले आका ने फरमाया, इनमें अली हैं, फातिमा हैं और उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इन्हें निस्बत भी अजीम अता फरमाई। सुभान अल्लाह। जिस तरह अल्लाह ने इस इंसान को अजीम बनाया, अल्लाह ने इन्हें निस्बत भी अजीम अता फरमाई। और वो निस्बत क्या है कि हजूर फरमाते हैं, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरता है वो शहीद की मौत मरता है। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, यकीनन जो उनके दर से वाबस्ता हो, जो उनकी गुलामी में रहे, जन्नत के दरवाजे यजीद के लिए तो नहीं खुलेंगे, हुसैन के गुलामों के लिए खुलेंगे। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ने अजीम निस्बत अता फरमाई। और सरकार बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने दावत फिक्र दी। आपने फरमाया, अलीफा संगिया उस राह चलिए जिस राह विच मौत सुकरात कोई नहीं, ना कोई मुनकर नकीर, ना खौफ कबरे, नाले होर हिसाब दी रात कोई नहीं, ना मुड़ लंघना पुल सरात उतू, नाले हुरो गिले मां दी जात कोई नहीं, लंघ जामना बिला हिसाब हैदर, नाले मौत थी बाद ममात कोई नहीं। मैंने सरकार का शेर पढ़ा तो सोचू में पड़ गया। बिल आखिर आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सामने आ गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए। और फिर दूसरी रिवायत में आता है, वो अकेले नहीं जाएंगे, एक एक बंदा 70 हजार को साथ लेकर जाएगा। तो ये जो निस्बतें हैं ये सारी अजीम हैं। ये सारा फैजान ही हजूर की आले पाक का है। वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हो, चिश्तिया हो, कादरिया हो, वो कोई आस्ताना हो, ये ऊपर से यहाँ से फैज आता है, वो सरकार गौसे पाक की बारगाह से आता है, जो हसनी हुसैनी सैयद है।
सुभान अल्लाह नजीब तरफ़ैन हैं और मेरे आका की आले पाक हैं, जिन्होंने दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने उन्हें ये इनाम, हजरत इमाम हसन और हुसैन के लिए जब हजूर ने फरमाया ना ये जनती जवानों के सरदार हैं, तो आप छोटे छोटे बच्चे थे, तो ये आका अलैहिस्सलाम ने कैसे फरमा दिया? बच्चे देखकर फरमाया, अपने नवासे देखकर फरमाया? फरमाया नहीं। निगाह नबूवत उठाई, देखा मेरा एक बेटा हसन इस्लाम के लिए अपना इक्तदार कुर्बान करेगा और मेरा दूसरा बेटा हुसैन इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐ ज़र्फ़ नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। ये इस्लाम है और इसी ने बंदे को इज्जत दी है। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी भी आएगी, लेकिन अल्लाह करे कि जब वो वक्त आए, आला हजरत के बरादर मोहतरम फरमाते हैं जब वक्त अजल हो, सर तेरी चौखट पे दरा हो, जितनी भी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और मट्टी ना हो बर्बाद बसे मर गए इलाही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की आवाज़। आका की मोहब्बत और सच्ची हो, और जब सच्ची मोहब्बत होती है तो बंदा पहचाना जाता है। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और दिल से अता फरमाए। 5 वक्त दुआ करते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमा। वो बंदा समझ जाए कि जो ये दुआ मांगने के बाद भी उस रास्ते पे नहीं चलता, उसकी कबूलियत नहीं, और जो चलते हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमा ले।